السلام علیکم. ٹیلنٹ نیوز میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. بلٹن بورڈ کے ساتھ میں ہوں مہر. بلٹن بورڈ میں آپ دیکھتے ہیں پورے ہفتے کی کچھ اہم اور دلچسپ خبریں. تو آئیے نظر ڈالتے ہیں بلٹن بورڈ کی کچھ اہم سٹوریز پر. ایپکس کمیٹی کا اجلاس، نیشنل کرائسس انفارمیشن مینجمنٹ سیل قائم کرنے کا فیصلہ. ہینگ ٹانگ 77 بحری جہاز. خدا حافظ. عصر حاضر اور بچوں کا ادب، کہانی اور تصویر سے نصابی سرگرمیاں آسان، اخلاقی تربیت بھی ممکن. انگلش والا سفر نہیں، اردو والا سفر. کیا آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے؟ مشروم جھیل، سکون، تازگی اور بے شمار قدرتی حسن. کتھک رقص، جذبات، احساسات کی ترجمانی کا انوکھا انداز. چہروں پر ہنسی بکھیرنے والا مدد کا منتظر. عمر شریف، پاکستان کا اثاثہ. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا. اس اجلاس میں ملک کی اندرونی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، مشیر قومی سلامتی موہت یوسف، وفاقی وزراء نے شرکت کی. اجلاس میں ملک کی اندرونی سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. شرکاء نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق مکمل اطمینان کا اظہار کیا. اجلاس کے دوران سیاسی و عسکری قیادت نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ کسی کو ہتھیار اٹھانے کی نہ اجازت دیں گے اور نہ ہی کسی قسم کی شرپسندی برداشت کی جائے گی. ملک دشمن ایجنڈے کے پیچھے موجود عناصر کو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ طاقت کے استعمال کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے. ایپکس کمیٹی نے تمام چیف سیکریٹریز اور متعلقہ حکام کو نیشنل ایکشن پلان پر منو ان عمل درآمد کی ہدایت بھی کر دی. اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں سائبر سیکیورٹی، جاسوسی اور سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات پر فوری عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا. اس کے علاوہ عدالتی اور سول اصلاحات سے متعلق اقدامات پر بھی فوری عمل درآمد کا فیصلہ ہوا. اعلامیہ میں بتایا گیا کہ اجلاس میں ہر ہدف کے لیے کارکردگی کے معیار اور ٹائم لائنز دینے نیشنل کرائسس انفارمیشن مینجمنٹ سیل قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. وزارت داخلہ اور وزارت اطلاعات کرائسس مینجمنٹ سیل کی نگراں ہوگی. اعلامیہ میں بتایا گیا کہ سی پیک اور نان سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی. سی پیک بالخصوص چینی باشندوں کی فول پروف سیکیورٹی بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا. داخلی سلامتی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے اور شر پسندوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے ساحل پر پھنسے بچاؤ بچاؤ کی صدا بلند کرتے ہوئے بحری جہاز کو آخرکار منزل مل ہی گئی. یہ ساحل سمندر پر پھنسا بحری جہاز، اور اس بحری جہاز پر 1.5 ماہ کی مدت میں کیا کیا گزری، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. ساری دنیا سے بھائی کپتان تم برے پھنسے. اگست کی نہ 14 اور نہ 15، سر پر منڈلاتا رہا بڑا خطرہ. اس جہاز کی لگ رہی تھی قسمت ہی خراب. تبھی اس جہاز کی مشکل بنی کراچی باسیوں کے لیے عذاب. پھر سے جہاز کا تیرنا لگ رہا تھا ایک خواب. سٹنگ ڈونگ نکلنے کا عمل بہت مشکل رہا. 21 جولائی کو آیا یہ بن بلایا مہمان، جس نے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑی ہے ہماری جان. لیکن اب خوشخبری یہ ہے کہ بہت ساری کوششوں کے بعد آخر کامیابی حاصل ہو ہی گئی. کراچی کے ساحل پر پھنسے بحری جہاز کو نکالنے کی تیسری کوشش کامیاب ہو گئی. جی ہاں، منگل کو بحری جہاز کو ساحل سے سمندر میں لے جانے کے آپریشن کا دوبارہ آغاز کیا گیا. ابتدا میں بحری جہاز کو 600 میٹر تک سمندر کے اندر کھینچ لیا گیا، جس کے بعد دوپہر 12:30 بجے جہاز کو ساحل سے 1500 میٹر دور تک لے جایا گیا. جہاز نے 850 میٹر کی دوری پر کرین بردار برج کو عبور کیا، جس کے بعد جہاز سے کرین بردار برج کے رسے کو ہٹا دیا گیا. جہاز کو گرانی سے لائے نئے اور مضبوط رسوں سے باندھا گیا تھا. اس آپریشن میں 2 ٹک بوٹ، کرین بردار برج، ہیوی مشینری، پائلٹ اور اسپیڈ بوٹ نے حصہ لیا. ترجمان کے مطابق
2 हफ्ते कब्ल कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने में मौसम एक बड़ी रुकावट बन गया था। रीफ्लोटिंग ऑपरेशन में तेज हवाओं और बुलंद लहरों से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। 20 नॉटिकल माइल फी घंटा रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बाइस मुश्किलात दरपेश रहीं। कराची के साहिल पर 1.5 माह से जायद फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दुबई से आने वाली हार्मनी टग बोट 3 हफ्ते कबल खराब हो गई थी। सी मैक्स कंपनी के नुमाइंदे आरिफ शेख ने बताया था कि हार्मनी टग बोट में लीकेज हुई थी जो मरम्मत से ठीक कर ली जाएगी। वाज़ेह रहे कि कराची के साहिल पर हैंग टोंग 77 बहरी जहाज 21 जुलाई को रेत में धंसा था। इसको निकालने के लिए पहला ऑपरेशन 10 अगस्त को किया था। पहले ऑपरेशन को तकनीकी खराबी की वजह से रोक दिया गया था, लेकिन जहाज को 200 फीट तक पानी की जानिब धकेल दिया गया था। 11 अगस्त को होने वाले ऑपरेशन में टग बोट खराब हो गई थी और जहाज वापस रेत की जानिब आ गया था। 12 अगस्त को जहाज को 600 फीट तक समंदर की तरफ खींच लिया गया था, जबकि ऊंची समंदरी लहरों और हवाओं ने जहाज का रुख 45 डिग्री समंदर की तरफ कुदरती तौर पर मोड़ दिया था। ताहम 13 अगस्त को तेज हवाओं और समंदरी लहरों ने पिछली पोजीशन पर दोबारा मोड़ दिया। असर हाजिर में बच्चों के अदब की तरक्की का सिलसिला 19वीं सदी में शुरू हुआ और 20वीं सदी में इसमें ज़बरदस्त इनकलाब आया। इस सदी में बच्चों के अदब को उरूज की मंजिल मिली। नानी नानी पता है क्या, तेरी मोरनी को मोर ले गए। नानी और दादी से कहानियां तो हम सभी ने सुनी हैं, लेकिन इन प्यारी प्यारी कहानियों के पीछे एक अहम मकसद मौजूद है। इन दिलचस्प कहानियों का मकसद इखलाक व हिकमत की तालीम है। बच्चे का कायनात से अवलीन राब्ता कहानियों के जरिए ही होता है। वो दुनिया की हर चीज से, यानी तोता, मैना, परियों, परिंदों, राजाओं, फूलों की कहानियों के जरिए इर्द गिर्द की चीजों से वाकफियत हासिल करता है। कहानियों के किरदार इसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं और वो खुद को इन चीजों का एक हिस्सा समझने लगता है। फिर सुनो, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। इन कहानियों के जरिए बच्चे इन चीजों को अपनाने और रद्द करने का अमल सीखते हैं। दादाजी का चश्मा गोल, दादी जी की चूड़ियां गोल। Johnny, Johnny, Yes, Papa. eating sugar. No, Papa. ड्रामे की दुनिया बच्चों की अपनी दुनिया होती है, जहां पर वो खुद को एक अहम किरदार अदा करने वाला देखते हैं। वैसे तो बच्चों के ड्रामे बहुत सादा होते हैं, इसीलिए वो उसको बड़े शौक से अपनाते हैं। मैं जान और मेरे प्यारे बाबा। तस्वीर भी बच्चे के लिए बहुत अहमियत रखती है। तस्वीर का ताल्लुक बराह रास्त दिल और नज़र से होता है। ये बच्चों की क़ुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ाती है। तस्वीर की मदद से वो तमाम निसाब से जुड़ी छोटी छोटी बारीकियों को आसानी से पढ़ने की कोशिश करता है। बच्चों के अदब की अहम ख़ुसूसियत इसका हैरत और इस्तिजाब है। इसकी वजह से बच्चों में क्यों, क्या और कैसे, कब जैसे सवालात उठते हैं। चूंकि बच्चे की फितरत में हमेशा जानना और पूछना होता है, इसीलिए बच्चों के अदब में भी हैरत और तजस्सुस का अंसर होना बहुत ज़रूरी है। कभी वो जानवर की शक्ल, तो कभी देव और भूत, तो कभी परी की शक्ल इख्तियार करता है। कभी जानवरों की बोली की वजह से वो कहानी इतनी दिलचस्प और अनोखी हो जाती है कि सदियों वो याद रहती है। Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. बच्चों की सीरत की तामीर के लिए मजहबी अकायद के किस्से, बुजुर्गों की कहानियाँ, उनकी सीरत, बहादुरों के कारनामे, खुदा का खौफ, सीरत से वाकफियत भी अदब अतफाल के अदीबों की एक अहम जिम्मेदारी रही है। अदब के ज़रिए बच्चों को तंग नज़री, तासुब जैसी बुराइयों से दूर रहने का दर्स फरहम किया जाता है। इन्हें ऐसी बातें बताई जाती हैं जिनसे उनके जहन में वसीउल नज़री को फ़रोग़ मिले और मोहब्बत की फ़िज़ा क़ायम रह सके। बच्चे वैसे ही कुदरत का एक हसीन तोहफ़ा है। इस हसीन तोहफ़े की हिफाजत के लिए खूबसूरत दिलचस्प कहानियों के ज़रिए हम इन बच्चों की ज़हनी, फ़ितरी, इखलाकी तरबियत बआसानी कर सकते हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इल्मो अदब के साथ साथ ये खूबसूरत दिलचस्प कहानियाँ किसी भी बच्चे की शख्सियत को बनाने में
अहम किरदार अदा करती हैं। ओ मेरे घोड़े चल पीठ पे बिठा, घोड़े की सवारी में। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक बार सफ़र ज़रूर करता है। मैं उर्दू सफ़र की बात कर रही हूँ, इंग्लिश सफ़र की नहीं। अक्सर सफ़र के दौरान कुछ लोगों को चक्कर आते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कुछ लोग इस बात से बहुत परेशान होते हैं कि इनको गाड़ियों में सफर के दौरान मतली महसूस होती है। इसी वजह से ऐसे लोग सफर से बहुत ही कतराते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोगों को ऐसा होता ही क्यों है? दरअसल सफर करते वक्त चक्कर आने या उल्टियां आने की वजह ये समझी जाती है कि सफर के दौरान दिमाग को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से मतज़ात मालूमात मिलना शुरू हो जाती हैं और दिमाग एक तरह से कंफ्यूज हो जाता है। जब हम पैदल चलते हैं तो हमारी आंखें, टांगे, पाँव, बाजू और कानों के अंदर मौजूद तवाज़ुन का निज़ाम सब दिमाग को ये इत्तला देते हैं कि हम हरकत में हैं। इसके बरक्स अगर आप बस में सफ़र कर रहे हो तो आपके कानों के अंदर मौजूद बैलेंसिंग का निज़ाम दिमाग को ये बता रहा होता है कि आप हरकत में हैं। लेकिन आपका जिस्म दिमाग को ये बताता है कि आप एक सीट पर बैठे हैं, यानी कि साकिन हैं, जबकि आपकी आंखें भी बस के अंदर हर चीज को साकिन देखती हैं। लेकिन याद रहे कि आपको चक्कर और वोमिटिंग सिर्फ उस वक्त आती है जब आप तेजी से तब्दील होते मंजर पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप गाड़ी के पर्दे बंद रखें और बाहर के मंजर पर तवज्जो ना दें तो चक्कर आएंगे और ना ही उल्टियां। दरअसल आंखों का पर्दा बसारत, रेटिना और दिमाग इतनी तेजी के साथ इमेजेस को प्रोसेस नहीं कर पाता, और जब आप जहन पर जोर डालते हैं, यानी कि अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा लेवल से आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग अपनी सलाहियत से आगे काम करने से इनकार कर देता है और इस सूरत में आपका सर चकराने लगता है और आपको मतली महसूस हो जाती है। खुदा ने दुनिया को बेशुमार कुदरती हुस्न से नवाजा है। चश्मों और आबशारों से गिरता हुआ पानी, लहलहाते दरख्त, ऐसा ही एक जन्नत नज़ीर मकाम है जिसे देखने के लिए एक जिंदगी तो कम पड़ेगी। पहाड़ों की चोटियों के दरमियान ज़मरुद रंग के पानी की इस झील का शुमार बिलाशुबा पाकिस्तान की ऊंची, बड़ी और खूबसूरत झीलों में होता है। सवात को खुदावंद ने बड़ी फयाजी के साथ फितरी हुस्न से नवाजा है। बेशतर लोग इसे सवात के मैदानी इलाकों में तलाशते हैं, जबकि ये हुस्न फलक बोस पहाड़ों की चोटियों, उनकी गोद में नीले पानियों की बर्फीली झीलों की शक्ल में देखने को मिलता है। बुलंदी से गिरने वाली आबशारों की शक्ल में देखने को मिलता है, या फिर बड़े बड़े बांडा जात की सूरत में देखने को मिलता है। सवात की पूरी वादी से भरपूर लुत्फ उठाने के लिए बिलाशुबा एक जिंदगी तो कम है। मशरूम झील के किनारे अगर कोई बैठ जाए तो वो यही सोचेगा कि सवात के फितरी हुस्न से महजूज होने के लिए दूसरी बार दुनिया में आना ही पड़ेगा। वैसे मकामी लोगों के मुताबिक बहार के मौसम में जैसे ही झील के आसपास बर्फ पिघलती है तो अनवाओ इकसाम की मशरूम उगना शुरू हो जाती हैं। मकामी लोग उन्हें इकट्ठा करके शहर में महंगे दामों फरोख्त भी करते हैं। उन्हें मुख्तलिफ अद्वियात बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। मज़कूरा अनवाओ इकसाम की मशरूम्स की वजह से झील का नाम भी मशरूम ही पड़ गया। मशरूम झील सतह समंदर से 13,500 फीट की बुलंदी पर वाक़े है। फलक बोस पहाड़ों की चोटियों के दरमियान ज़मरुद रंग के पानी की इस झील का शुमार बिलाशुबा पाकिस्तान की ऊंची, बड़ी और खूबसूरत झीलों में होता है। चोटियों पर बड़ी बर्फ पिघलकर झील का पेट भरती है। मई के वस्त से सितंबर के वस्त तक का दौरानिया झील की सैर के लिए बहुत आइडियल है। बाकी महीनों में यहाँ पर बर्फ अटी रहती है। झील का ये दिल फरेब नज़ारा, खूबसूरत खुद रूह फूल और सुकून। क्या बात है, ये नज़ारा किसी जन्नत के नज़ारे से कम नहीं।
कथक रक्स असा की शायरी का एक खूबसूरत और मुनफरद अंदाज है। फ़नून लतीफ़ा में रक्स भी जज्बात के इजहार की एक निराली बोली है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फ़नून लतीफ़ा में मौसीकी, सुर ताल और गायकी के मुख्तलिफ अंदाज के साथ रक्स भी जज्बात के इजहार की नहायत लतीफ़ और ख़ूबसूरत शक्ल है। रक्स जिस्मानी हरकातों सकनात की एक पुरअसर, नहायत मर्जा सूरत और तफरी तबाह का आला ज़रिया है। क्लासिकी रक्स की बात की जाए तो इसे अज़ा की शायरी कहा जाता है। अहले फ़न के नज़दीक रक्स दिमाग और जिस्मों की मौजू और मुतरन्निम हम आहंगी का नाम है, जिसे दुनिया की हर तहजीब ने अपनाया और इसे फ़रोग़ दिया। बरे सग़ीर में क्लासिकी रक्स की इब्तिदा मंदिरों में हुई, जहाँ देवताओं की खुशनुदी हासिल करने और कहानियाँ बयान करने के लिए बदन बोली का सहारा लिया गया और चेहरे के तासुरात से कथा बयान की गई। कथा का लफ्ज़ संस्कृत के कथा से निकला है और नाम से जाहिर है कि ये वाक़यात और दास्तानों मजमे के सामने पेश करने के लिए किया जाने वाला एक रक्स है। इसके ज़रिए ज़्यादातर रज़मिया दास्तानों को बयान किया जाता था और हर दौर में इसके नित नए रंग और अंदाज सामने आए। बाद में इसे महारत से तहरीर भी किया गया और सीखने वालों ने किताब के ज़रिए इस रक्स की बाकायदा तालीम ली और मश्क करके कमाल हासिल किया। सिंध में तहसीबी आसार से बरामद मुजस्समों में रक्स करते हुए मर्द और औरतें भी नजर आती हैं, जिससे साबित होता है कि रक्स सदियों पहले भी इस तरह मकबूल था। मुगलों के दौर में रक्स और ख़ास तौर पर कथक की सरपरस्ती की गई। तकसीम के बाद कथक रक्स में कामिल कहलाने वाले महाराज गुलाम हुसैन पाकिस्तान आ गए थे और 1999 तक यहाँ इस फ़न को जिंदा रखे रहे। महाराज गुलाम हुसैन की एक होनहार शागिर्द नाहिद सिद्दीकी थी। एक दौर में अदब और आर्ट के मुख्तलिफ शोबों में पाबंदियों की वजह से कथक रक्स के कई माहिर मुल्क छोड़कर चले गए थे। आज भी रक्स और कथक के हवाले से लिखी गई कुतुब में उनका नाम महफूज है। पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन, वर्सेटाइल स्टार, पाकिस्तान का सरमाया और सब पाकिस्तानियों की जान, स्टेज अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ ने इमरान खान से अपने बेहतर इलाज के लिए मदद की अपील की है। पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन, स्टेज अदाकार और मेज़बान उमर शरीफ ने बेहतर इलाज के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान से मदद की अपील करते हुए कहा है कि डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें बेहतर इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहिए। उमर शरीफ ने एक वीडियो पैगाम में इलाज की अपील की, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वो अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद हैं और काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। उमर शरीफ की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान से मदद की अपील करते हुए कहा गया कि डॉक्टर्स ने कहा है कि मुझे बेहतर इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे इलाज के लिए, बेहतर ट्रीटमेंट के लिए बाहर मुल्क में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी किस्मत में लिखा था कि मैंने इमरान खान के शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाने में मदद की। उमर शरीफ का कहना था कि डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि मेरा बेहतर इलाज अमेरिका में हो सकता है। और मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका बेहतरीन ट्रीटमेंट अमेरिका में हो सकता है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मैं उमर शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुखातिब हूँ। इमरान खान जब भी कोई काम शुरू किया है, आपने मुझे फ़ोन किया। मैंने हमेशा आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहा है, इसीलिए मुझे यकीन है कि आप भी मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। जब भी कोशिश की है, आपने मुझे कॉल किया, मैंने हमेशा आपकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा है, इसलिए मुझे यकीन है कि आप भी मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। और इनके मर्ज का इलाज दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक अमेरिका, जर्मनी और सऊदी अरब में मौजूद है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स का कहना है कि 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा ताख़ीर नहीं की जा सकती है, इससे ज़्यादा वक्त नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामून खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि हम इनकी सेहत के लिए
دعا گو ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ میں وزیر اعظم کو عمر شریف کا یہ پیغام دوں گا اور جن 3 ممالک میں ان کا علاج ہے وہاں بھی بذات خود رابطہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سعودی اور جرمن سفارت خانے سے بھی رابطہ کر کے اقدامات اٹھائیں گے اور امریکہ سے بھی کہیں گے، لیکن یہ دونوں ملک قریب ہیں تو معاملات جلدی ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ جو کچھ حکومت کر سکتی ہے عمر شریف کے لیے کرے گی۔ ادھر مداحوں کی جانب سے عمر شریف کے لیے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ہر پاکستانی کا دل عمر شریف کے لیے دعاؤں سے بھرا ہوا ہے اور تمام پاکستانی یہ امید رکھتے ہیں کہ حکومت جلد سے جلد اس معاملے کے لیے کوئی اقدام اٹھائے تاکہ عمر شریف جلد سے جلد صحت یاب ہو سکیں۔ بلٹن بورڈ پہ فی الحال اتنا ہی۔ کچھ اہم اور دلچسپ خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے بلٹن بورڈ کی کچھ ٹاپ سٹوریز لے کے۔ تب تک رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ دس از می مہر سائننگ آف۔ خدا حافظ۔